you have enjoyed your last lecture. Now today we'll again continue with the algebraic identities. Now first question you come across is 2x plus y equal to 5 and xy equal to 2 is given to you, and we need to find value of 4x square plus y square. Now guys, 2x plus y is given and we are question is demanding to get 4x square plus y square. So ultimately we need to do squaring both the side. So आपके पास आ गया a square plus 2ab plus b square which is equals to 25. Clear है यहाँ तक? 4x square by default and we have 4xy and y square which is equal to 25, and value of x into y is already known to us is 2. So hence we have 4 2s are 8, and when 8 goes on right hand side 25 minus 8 gives you 17. So it's sort of warm up I can say. उस टाइप का भी सम रखा हुआ है मैंने, तो आप कनेक्टेड रहोगे लास्ट क्लास से. तो अभी तक हमने बहुत बेसिक ही सीखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have if x minus 1 by x equal to root of 3, find x square plus 1 by x square. I will suggest कि आप ये वाला सम खुद से ट्राई करेंगे, ये वाला सम नेक्स्ट वाला, and after trying out that question you can watch out the solution. So you can pause the video and try this question. X minus 1 by x equal to root of 3 and we need to find the value of x square plus 1 by x square. तो आंसर तो आ जाना चाहिए था अभी तक. क्वाइट इजी. x square minus 2x into 1 by x, formula a minus b the whole square, which gives you a square 2a minus 2ab plus b square, and x cancel होने के बाद you have left with minus 2, and when minus 2 goes on right hand side it becomes automatically plus 2, and the resultant is coming out to be 5. तो ये दो सम आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखने and try to solve this of your own. Just write down question and solution of your own, and this is your solution. Okay, now again ये तो आपने अभी अभी किया हुआ है. Now moving on, ये वाला सम I will not say अच्छा है but ठीक है. जैसे x plus y is given to us as 7 and क्वेश्चन में x into y भी 2 दिया है, बट गाइस इस बार थोड़ा सा हटके उसने पूछा है x raised to 4 plus y raised to 4. सो स्टार्ट तो काफी इजी है, स्क्वायरिंग करना ही है आपको. स्क्वायरिंग करने के बाद यू हैव x square plus 2xy plus y square which is equal to 49, and also x into y is known to us which is 2. 2 2s are 4, 4 वहां गया, 49 में से 4 गया, that is 5, 45. अब क्वेश्चन के डिमांड में x square plus y square नहीं था, क्वेश्चन की डिमांड में था x raised to 4 plus y raised to 4. दैट मीन्स मुझे फिर से इस वाले टर्म का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. अब स्क्वायरिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट a स्क्वायर लगेगा, 2ab लगेगा और फिर b स्क्वायर लगेगा. सो यू हैव x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab लाइक थिंग दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना a आपका x स्क्वायर है और b आपका y स्क्वायर है. Now x square into y square can be clubbed up and written as x into y whole square, correct? And eventually x square का square that becomes x power of 4 and y square का square that becomes y power of 4. Now x into y is already known to us, 2 दिया हुआ था. 2 का square gives you 8, 2 का square gives you 4 into 2 gives you 8, and 45 का square तो आपको मालूम ही होगा. And here we have final answer as x raised to 4 plus y raised to 4 is equals to 2017. So काफी अच्छा प्रॉब्लम था ये, 2 बार स्क्वायरिंग करना होता है. So I will suggest just write down question and solution of your own. Try to write solution of your own. Okay, just pause the video. Now this is solution. If you have missed out anything, you can calmly look at the solution. सिंपल है वैसे तो, गलतियां होंगी तो इसमें माइनर गलतियां होंगी, आपने कुछ इधर उधर कर दिया होगा नंबर्स में, स्क्वायरिंग गलत कर दिया होगा तो गलतियां होंगी, अदरवाइज इसमें स्कोप कम है गलती होने का. अब चालू होता है टॉपिक.
अभी तक मैं आपको वार्म अप करवा रहा था, 8 9 से जो भी आइडेंटिटीज थी, 6 7 8 9 जो भी था, आप उसके साथ जुड़े हुए थे। अब थोड़ा सा अलग चालू होगा, और फिर टॉपिक को हल्के से एस्केलेट भी करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। गाइस, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस सी स्क्वायर आ गया। अब एट ए टाइम दो जन को मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, एट ए टाइम दो जन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हो गए दो दो जन, ए बी बी सी सी ए, कंफर्टेबल है एकदम। अब बारी नाइन्थ वाले की, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पहले तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आना है, इसमें तो कोई डाउट आने का उसको। देखो, स्क्वायर कभी नेगेटिव होते ही नहीं है, कभी नहीं होने वाले नेगेटिव, है ना? तो आप नेगेटिव सोच रहे हो कि सर माइनस बी लिखा है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं है, उसका तो स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस बी स्क्वायर ही आना है। ठीक है, अब बारी एट ए टाइम दो जन को लेने की। तो देखो, टू ए है प्लस में और बी है माइनस में, सो आपके पास आएगा मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस ए बी, इस वजह से ये बन गया -2ab। फिर है आपके पास माइनस बी और एक है सी, सो ये तो बन गया आपका -2bc। और फिर है आपके पास ए और लास्ट में सी, तो ये बन गया +2ac। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में तो डाउट आने का बॉस स्कोप ही नहीं है। एट ए टाइम टू टर्म्स को मल्टीप्लाई, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी, सो वी हैव -2ab, माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c, वी हैव -2bc, we have positive a multiplied by positive c, we have +2ac। quite easy। अब वही कॉन्सेप्ट आप इसमें ट्राई करिए ना, a माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे आप? ए स्क्वायर वही, बी स्क्वायर वैसे ही, सी स्क्वायर वैसे, स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आएंगे। एट ए टाइम दो जन को लेंगे, तो आपके पास आएगा -2ab, बिकॉज ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। फिर आप लेंगे माइनस बी और माइनस सी को, दोनों को लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +bc, है ना, +bc। और फिर हम लेंगे फर्स्ट को और लास्ट को, ए और माइनस सी को, सो आपके पास आएगा -2ac। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों आइडेंटिटीज इजीली। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ एट ए टाइम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके रख देना, एंड डू नॉट ट्राई टू बाय हार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नहीं, मैंने बताया कैसे आता है ये। अब एक इंपॉर्टेंट नोट आई कैन से, आई विल नॉट से कि ये एग्जाम में पूछेंगे बॉस, ये आपको, आप मैथमेटिक्स के एल्जेब्रिक ब्रांच में अगर कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा, आंसर आके यहाँ पे रुक जाएगा, x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और हमें उसको फिर दो पार्ट में तोड़ने आना चाहिए, मतलब ये समझो कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेप होगा अच्छे प्रॉब्लम का। तो हमें अगर ये रिजल्ट मालूम रहेगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक का नेचर समझना काफी इजी होता है इंस्टेड ऑफ डिग्री 4। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको ऐसे याद रखें, दैट x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 is written as x square plus x plus 1 multiplied by x square minus x plus 1 guys। आई होप ये क्लियर है आप लोग को मैंने क्या किया। हाँ, अब प्रॉब्लम है कि सर ये आया कैसे, आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू कैन जस्ट वेरीफाई बाय ओपनिंग ब्रैकेट्स ऑफ राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई देम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इजीली करके देखिए एंड चेकआउट कि ये सेम स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड लेट मी नो एज वेल। ओके, चलो फटाफट ये करके देखो ब्रैकेट ओपनिंग जल्दी से। फर्स्ट राइट डाउन दिस आइडेंटिटीज, 8th 9th 10th, write down identities and then note down this and verify by yourself please। Okay, now moving further, we have one important identity, very important identity guys, एकदम मतलब आना ही चाहिए ये आपको।
बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में आपको देखने मिलेगा इसको। तो है क्या चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हाँ, इसका वेरिफिकेशन बताना जरूरी है क्योंकि ये आपके लिए नया ही है पूरा का पूरा। तो इसके प्रूफ के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड गाइस। So in my right hand side we have a plus b plus c and a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca. What I will suggest, हर एक के ब्रैकेट को ओपन करने के लिए फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस a to each and every term of second bracket. a को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करिए, हर एक टर्म से, मतलब a gets multiplied by a square and you will get by default this a cube. When a gets multiplied by b square by default you will write a into b square. Then this a will get multiplied by c square, you will write ac square. Then this a will get multiplied by ab, you will write a square b minus के साथ. Then this a gets multiplied by minus bc, you will write minus abc. A gets multiplied by finally minus c a के साथ, you have minus a square c. अब जैसे मैंने a के साथ सबको मल्टीप्लाई किया, you need to open this bracket with the help of b as well. So b multiplied by a square giving you b a square, b multiplied by b square giving you b cube, b getting multiplied by c square giving you b c square, b multiplied by minus ab giving you minus a b square, b दो बार आया, b getting multiplied by minus bc, दो बार b आया, b square c, b getting multiplied by minus ca, तो minus abc. आई डोंट थिंक मुझे c का एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपको खुद ही समझदार हो, आप समझ में आ गया होगा कि c को भी मैं हर टर्म के साथ भेजूंगा एंड आई विल गेट थर्ड लाइन. अब देखो ना, ए बी स्क्वायर, ए का a इंटू बी स्क्वायर कट हो गया ए बी स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव वाले, ए सी स्क्वायर ये वाला ए सी स्क्वायर कट हुआ किसके साथ, ये वाले ए सी स्क्वायर के साथ, है ना. फिर माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी कट हो गया ये वाले ए स्क्वायर बी के साथ. फिर ए स्क्वायर सी कट हो गया इसके साथ. तो ये सब कटिंग विटिंग करने के बाद गाइस क्या बच रहा है अपने पास, फर्स्ट लाइन से मेरे पास ए क्यूब बचा, सेकेंड लाइन से मेरे पास बी क्यूब बचा और थर्ड लाइन से मेरे पास सी क्यूब दिख रहा है. फर्स्ट लाइन में माइनस ए बी सी, सेकेंड लाइन में माइनस ए बी सी, थर्ड लाइन में माइनस ए बी सी. तो माइनस ए बी सी कितने बार आ रहा है, 3 बार. सो वी कैन राइट माइनस 3abc. करेक्ट, सही है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कहां से आया गाइस, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका. मैंने ओपन किया राइट हैंड साइड को और मुझे आ गया लेफ्ट हैंड साइड. इजी था. अब याद भी हो जाना चाहिए, देख लो आपको ये याद होना चाहिए पूरा का पूरा. थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर दूं. अब आपका काम है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी. कूल. ब्रैकेट ओपनिंग किया,
right hand side का I have got left hand side. Now you can just note it down each and everything quickly. Pause the video. Okay, now continuing. ये आई विल सजेस्ट थोड़ा और पॉज करो वीडियो और ये वाला जो आइडेंटिटी है ना 12th वाला इसको प्लीज 5 टाइम लिख दो फटाफट 5 टाइम्स. आई रिपीट गाइस, राइट दिस आइडेंटिटी 5 टाइम्स. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c a square b square c square minus ab minus bc and minus c. आइडेंटिटी 5 टाइम लिख लो. क्यों? आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये. ओके, आई होप सबने लिखा रहेगा. चीटिंग तो नहीं करनी चाहिए आपने. अब मूव करेंगे एक और नोट पे, एल्जेब्रिक नोट. क्या बोल रहा है इसमें, देखिए जरा हम भी. वेरी इंपॉर्टेंट नोट पे लिखा है. देखो बहुत बार ऐसा होने वाला है जो आप अभी सीख रहे हो ना, अच्छे प्रॉब्लम जब आप कर रहे हो प्रॉपर एंट्रेंस रिलेटेड, तो वहां पे इंटरमीडिएट स्टेप्स में ये सब चीजें दिख जाएंगी और वहां से इंटरप्रिटेशंस करने आपको आना चाहिए. दिखने को बहुत चीजें सिंपल है, एक्चुअली मैथमेटिक्स चलता बहुत सिंपल वे में ही है. हम उसे समझते बराबर नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड बनना चालू हो जाता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड सब डिटेल्स, मतलब माइन्यूट माइन्यूट सब चीजें आनी चाहिए. अब देखो, अभी पहले तो मैंने इसका पोस्टमार्टम किया कि ये कैसे आ गया है ना, ये वाला a प्लस बी प्लस सी ये कैसे आ गया. अब मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं. सॉरी. if a b comma c are real number, then sorry, then a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c is always greater than equal to 0. अरे ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे बोल सकता है कोई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जबकि माइनस भी है, उसके बावजूद भी मैं हिम्मत दे रहा हूं लिखने की कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया. क्यों आया वो समझ लेंगे अभी बहुत अच्छे से. तो देखेंगे तो आपके पास है प्रूफ इसका कैसे किया मैंने. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है. इसको हमें स्टेटमेंट को बताना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इन शॉर्ट ये चीज नॉन नेगेटिव है ये बता के देना है, नेगेटिव नहीं है ये बोलना है. अब आप देख सकते हो सब चीजें ब्लू कलर से लिखी हुई है, बट मैंने पर्पसली टू ब्लैक कलर से लिखा ऊपर, टू ब्लैक कलर से लिखा नीचे. ठीक है. इन शॉर्ट आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2. कॉमन है, मैथमेटिक्स में चलता ही है. अब ये करने से क्या हुआ, 2 अंदर गया, 2 अंदर गया तो ये बन गया 2a स्क्वायर, ये बन गया 2b स्क्वायर, ये बन गया 2c स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2ab, ये बन गया माइनस 2bc, ये बन गया माइनस 2ca. दिख रहा है सब, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ऑब्वियस दिख रहा है सबको, बराबर समझ में भी आ गया. अब चीजें समझो अच्छे से. कितना ए स्क्वायर था, दो दो था, 2a स्क्वायर था. एक ए स्क्वायर यहां रखा फर्स्ट वाले में और एक ए स्क्वायर लास्ट वाले में रखा. सही है. अभी भी 2a स्क्वायर ही है ये तो, क्योंकि आपने सिर्फ क्या किया, आपने 2a स्क्वायर को तोड़ के लिखा है, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा आगे देखते हैं फिर. 2b स्क्वायर था उसको मैंने पर्पसली लिखा है b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बात सही है. 2c स्क्वायर को भी मैंने लिखा है c स्क्वायर अलॉन्ग विथ c स्क्वायर, सब सही चल रहा है. फिर इनको क्यों नहीं तोड़ा मैंने, इनको जानबूझ के नहीं तोड़ा गाइस. अगर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और माइनस 2ab रेडिली अवेलेबल है, कुछ अच्छी चीज याद आ रही है, वेरी गुड, याद आना चाहिए. अगर आपके पास बी स्क्वायर है, माइनस 2bc है और सी स्क्वायर अवेलेबल है, अभी भी कुछ तो याद आना चाहिए.
वैसे ही सी स्क्वायर माइनस टू ए सी और ए स्क्वायर से भी कुछ याद आना चाहिए, और वो चीज है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ तक सब चीजें सॉर्टेड होने चाहिए, समझ में परफेक्टली आना चाहिए। अब सर ने एरो मार के क्या लिख दिया, सर ने तो घोषित कर दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ऐसे कैसे, ये तो डाउट रहेगा ही आपको, सर आपने ऐसे कैसे एरो मार के बोल दिया, ये जो चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये वाली चीज, ये वाली चीज मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली ब्लंटली बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब ये क्यों बोल पा रहा हूं उसको समझना, और ये भी समझना कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये तो आया इस स्टेप से, ये आया इस स्टेप से, मतलब ये वाली चीज भी क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। उसके लिए पहले ये बात को मुझे आंसर करना, सम ऑफ स्क्वायर मैंने लिखा है कैन नॉट बी नेगेटिव। आप खुद ही सोच के देखो, दो उठा लो, एक समझो ए का स्क्वायर है और एक समझो बी का स्क्वायर है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये स्टेटमेंट के बाद आंसर आ गया है, दिस इज इंडिपेंडेंट। आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि स्क्वायर देख के और प्लस देख के मैंने घोषित कैसे कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट स्टफ। तो दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज काइंड ऑफ एग्जांपल। सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव गाइस, करके देखते हैं। लेट अस टेक a स्क्वायर एंड b स्क्वायर फॉर एग्जांपल, एंड वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b डिफरेंटली। जैसे मैंने a का वैल्यू 2 लिया, b का वैल्यू 3 लिया, करो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर एंड ऐड देम। मिल रहा है आपको कुछ, आपको मिलना चाहिए 13 ठीक है। अभी a का वैल्यू अलग लिया है बॉस, 2 था -2 लिया है, b का वैल्यू भी अलग लिया है, -3 लिया है, दोनों नेगेटिव लिया है। बट गाइस स्क्वायरिंग करने के बाद, ऐड करने के बाद वो नेगेटिव का कोई काम हुआ ही नहीं, असर ही नहीं दिख रहा है। यू आर गेटिंग आंसर एज 13 अगेन, जस्ट चेक इट आउट। इफ आई टेक a का वैल्यू एज -2, आई विल गेट 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, again for the third case I am getting answer as 13. If I take a का value as 2, b का value as -3, again I am getting answer as 13. So whether both are positive, any one of them is negative, both are negative, does not make any difference. The sum of square हमेशा greater than equal to क्या रहेगा, 0। तो अगर ये चीज समझ में आती है बॉस, ये वाली चीज, सर ने बोला स्क्वायर, देखो ये लिखा जो स्टेटमेंट है ना, सम ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, उसी ने तो मुझे यहाँ पे हेल्प किया लिखने के लिए, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप खुद ही सोचो, ये कुछ भी आ जाए अंदर बट उसका तो स्क्वायर हो रहा है, कुछ भी आ जाए स्क्वायर हो रहा है, कुछ भी आ जाए स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते। तो इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव जैसी चीज, ये भी पॉजिटिव जैसी चीज, तीनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी यही आएगा, पॉजिटिव। ओके सर, फिर इक्वल टू जीरो क्यों लिखते हो आप, वो भी सिखाता हूं मैं, बट पहले ये डाइजेस्ट करो कि सम ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, समझा कि नहीं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, समझ में आना चाहिए आपको। नाउ मूविंग ऑन कि सर ये जीरो क्यों लिखते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लिख दिया, इक्वल टू क्यों हो सकता है, देखते हैं वो भी। इसके लिए आपको ये समझना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो होगा कि नहीं होगा, सोच के देखना। परफेक्ट होगा। सम ऑफ स्क्वायर जीरो होगा कब, जब दोनों ए एज वेल एज बी, दोनों के दोनों जीरो है। देखो आप ही, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो, तब ये होगा। जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, बराबर है। तो ये आप इन जनरल कुछ चीजें सीख रहे हो जो एल्जेब्रा में बहुत काम आएगी आप लोग को, while solving entrance problems specifically. So similarly, this is similarly का symbol, okay? Similarly, this is called as similarly. तो कल को किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो बोल दिया, ऐसा बोला किसी ने,
मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं सीधा बोल दूंगा ठीक है तेरा ए का वैल्यू, तेरे बी का वैल्यू और तेरे सी का वैल्यू सबके सभी जीरो है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी के पास सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, तो हर एक टर्म जीरो होगा। सम ऑफ स्क्वायर का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है, हर एक टर्म का वैल्यू जीरो ही होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। क्यों? नहीं तो अदरवाइज तो होल्ड ही नहीं करेगा जीरो इसको। कोई भी नंबर ले लो जीरो के अलावा, इक्वल टू जीरो नहीं बिठा पाओगे फिर आप। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ स्क्वायर या तो जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे। जीरो कब होंगे? जब उनका हर एक टर्म जीरो होगा, और जीरो से बड़े तो होने ही है। अदरवाइज जीरो नहीं होंगे, तो अदरवाइज वो पॉजिटिव होंगे। जैसे आपने अभी देखा, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ भी ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क ही नहीं पड़ा, आंसर 13 आ रहा है। बट आंसर जीरो कब आया? जब हमने दोनों की वैल्यूज को जीरो अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है, वो तो आपको समझा दिया। इक्वल टू जीरो लिखा है, वो भी समझा दिया। शायद ऐसा हो जाए ये भी जीरो हो जाए कभी, ये भी शायद जीरो हो जाए पूरा का पूरा, शायद ये भी जीरो हो जाए। ऐसे कंडीशन में फिर तो भाई ये इक्वल टू जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों बोला जाता है। ओके, तो ऐसा कभी दिखा, हिंट आ जाने चाहिए कि आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली बोल सकते हो हेंस फोर कि सर वो चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। दूसरा ये डाउट, सर एग्जाम में आता है क्या ये प्रूफ वगैरह? इफ यू टॉक अबाउट आईआईटी नहीं आएगा, सीईटी नहीं आता है प्रूफ, बट इसके एप्लीकेशंस होते हैं, एंड एग्जैक्ट एप्लीकेशंस भी नहीं। जैसे मैंने बहुत बार बोला, दिस वर्क्स आउट एज एन इंटरमीडिएट स्टेप इन गुड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ये आपने अभी लिखना स्टार्ट करना है। वीडियो पॉज करेंगे, सबसे पहले इतना पार्ट लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन लिखेंगे। वीडियो पॉज होना चाहिए, एंड देन फिर से वीडियो चालू करके आप ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। एक बार मैं रिपीट कर दूं, ये वाली चीज यहाँ पे आंसर है, ये इंडिपेंडेंट चल रहा है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, प्लीज उसको मिस्टेक मत कर देना। दिस इज इंडिपेंडेंट टॉपिक और एग्जाम्पल यू कैन से। हमने सीखा सम ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड आफ्टर राइटिंग अप दिस थिंग फाइनली यू विल राइट दिस नोट। एंड डू रिमेंबर, अगर किसी ने बोला है सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, हर एक टर्म जीरो ही होगा। ओके, सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन फॉर द डे। हमने क्या क्या किया अभी थोड़े से इसमें से रिवाइज करेंगे। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से एकदम बेसिक एग्जाम्पल से, देन वी हैव मूव्ड ऑन टू दिस एग्जाम्पल विच वाज क्वाइट इजी। ये भी ठीक ही था, ऐसा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते कोई। आइडेंटिटीज, इस पे मेरा बहुत ज्यादा जोर था। फिर ये वाला आइडेंटिटी 12th वाला विच वाज वेरी क्रूशियल। और फिर 12th वाले आइडेंटिटी के एक पार्ट को उठा के मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। एंड बट हाँ, ये करते करते वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, henceforth whenever we see sum of square as zero we will directly put those terms as zero, कितने भी होने दो। कल को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देगा, तो आई विल से ए बी सी डी सबके सब जीरो के इक्वल है, अगर ये जीरो पे इक्वल है तो। ओके, चलो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड, एंड आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एवरीबॉडी। थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे।